چلیے شروع کرتے ہیں. یہ بہت ہی مناسب بات ہے کہ دا بلیک ہول میں آج بلیک ہول پر بات ہو رہی ہے. یہ بلیک ہول کا تصور خاصا پرانا ہے. کوئی 200 سال پہلے ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھا, فزسسٹ تھا, لاپلاس کے نام سے. تو اس نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا کوئی ایسے ستارے بھی ہو سکتے ہیں جو اتنے بھاری ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہ نکل سکے بشمول روشنی کے. تو اس کو یہ خیال کیسے آیا, اس کی طرف سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. تو دیکھیں, زمین پر جو بھی چیز آپ اوپر پھینکتے ہیں سو واپس آ جاتی ہے. تو ان چابیوں کو اگر میں اوپر پھینکوں تو کچھ فاصلہ اوپر جا کر پھر یہ چابیاں واپس زمین پر آ جاتی ہیں. یہ کتنا اوپر تک جا سکتی ہیں اس کا انحصار اس پہ کہ میں نے کتنی زور سے پھینکا, یعنی کہ شروع میں اس کی سپیڈ کتنی تھی. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے ایک چیز اوپر جاتی ہے ویسے ویسے اس کی سپیڈ تو کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی پوٹینشیل انرجی بڑھتی ہے. تو اگر ہم اس طرح اس سپیڈ سے پھینکیں کہ اس کی جتنی شروع میں حرکی توانائی تھی, کائنیٹک انرجی تھی, وہ اوپر جا کر ختم ہو جائے تو وہ رفتار کتنی ہوگی. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولا مجھے استعمال کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جو شروع کی تو یہ لاپلاس کی کیلکولیشن تھی, جو سمجھ لیجئے کہ میرا خیال ہے کوئی 1790-95 کے لگ بھگ ہے. اور اس نے کہا کہ جو شروع کی کائنیٹک انرجی ہے سو مکمل طور پر گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں تبدیل ہو جائے گی, جس کی مقدار یہ ہے جی ایم ایم بٹا آر اسکوائر. تو یہاں پر ایم اس شے کا وزن ہے جو آپ نے اوپر پھینکا, یہاں ایک طاقت ہے, اور ایم یہ زمین کا وزن ہے, یہ زمین سے اوپر فاصلہ ہے, زمین کا قطر ہے. تو یہ جب ٹھیک ایک دوسرے کے برابر ہوں گے تو اوپر بالکل اپنی چوٹی پر اس کی رفتار صفر ہو جائے گی, یہ کھڑا ہو جائے گا. اس سے اگر آپ تھوڑا سا زیادہ تیز پھینکیں گے تو بس پھر یہ جسم چلتا چلا جائے گا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے ایم کٹ گئے تو ادھر سے ہم نے وہ رفتار یوں نکالی 2gm بٹا آر. اس کو اسکیپ ویلوسٹی کہا جاتا. اچھا, بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایم کٹ گیا, یعنی کہ آپ کسی ہلکی چیز کو پھینکیں یا بھاری چیز کو پھینکیں, بس اگر آپ نے ایک مخصوص رفتار سے زیادہ تیز رفتار پر اس چیز کو اوپر پھینکا تو بس وہ چیز چلتی چلی جائے گی, یہ چھوٹ جائے گی, اسکیپ کر جائے گی. اگر آپ زمین کا اس میں ماس, زمین کا نصف قطر ریڈیس ڈالیں اور جو جی یہ نیوٹنز گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے, تو زمین کے لیے یہ 10 کلومیٹر یا 11 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتا, جو کہ بہت تیز ہے. یہ کوئی 27,000 میل فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہے. تو ایک راکٹ اگر اس سپیڈ سے اوپر جائے یہ چلا جائے گا, زمین سے فارغ ہو جائے گا. ہاں, یہاں پر ماس ہے نا, تو سورج زمین سے تقریباً 1,000,000 گنا زیادہ بھاری ہے. تو جب آپ اس کا اسکوائر روٹ لیں گے تو اس سے 1000 گنا زیادہ سپیڈ پر پھینکنا ہوگا. تو سورج سے نکلنا بہت مشکل ہے, زمین سے قدرے آسان ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ کہ ایم کٹ گیا, اور میں یہ مزے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو روشنی کا کوئی وزن ہوتا ہی نہیں ہے, اس کا ماس ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ماس صفر ہے.
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि m यूं कट गया, क्योंकि ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, मगर फिर भी इससे जो जवाब निकला सो इतना ज़्यादा गलत नहीं था। अच्छा, तो ये 200 साल पुरानी बात है। अब 100 साल पहले की बात अब मैं करूँगा, और ये आइंस्टाइन का ज़माना है। और आइंस्टाइन ने जो एक बिल्कुल नया नज़रिया पेश किया ग्रेविटी का, उसमें ये था कि जब कोई भारी जिस्म रखा जाता है तो उसके गिर्द ज़मान और मकान, स्पेस और टाइम खमदार हो जाते हैं, मोड़े जाते हैं। तो जैसे जब कोई चारपाई पर बैठता है ना, बैठने से पहले वो चारपाई बिल्कुल बराबर होती है। जो ही कोई उस पर बैठता है तो उसके अंदर एक खम पैदा हो जाता है। और फिर अगर कोई उसके नज़दीक आप गेंद रखें तो अगर यहाँ पर आप कोई गेंद रखें तो वो गेंद लुढ़क के इधर आ जाता। यानी कि एक भारी जिस्म ने जो स्पेस में एक कर्वेचर पैदा किया, एक खम पैदा किया, उसके सबब ये दूसरा जिस्म उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो कशिश उस सबब पैदा होती है। अब ये तो तशबीह देने वाली बात है, बच्चों को बताने वाली बात है। और बात देखो, उसमें कोई हर्ज नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है जो मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन असल में इसके पीछे कुछ मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर जो बड़े बैठे हैं वो उसको समझ लेंगे, जब आप भी बड़े होंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगी। हम एक फ्लैट सरफेस को, एक चपटी सतह को कैसे पहचानते हैं? तो फर्ज कीजिए कि ये एक इस तरह का मुसल्लिस है, ट्रायंगल है, और अगर ये ए है, ये बी है, तो ये कितना होगा? ये एक फ्लैट स्पेस की पहचान है, और इन तमाम जावियों की जमा 180 डिग्री के बराबर है। ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा। अच्छा, अगर इसको हम एक ज़्यादा ज़रा मुख्तलिफ ज़बान में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि d(s²), अगर ये इसको हम ds कहें, इसको dx कहें, इसको dy कहें, तो ये dx² प्लस dy² है, और ये फ्लैट स्पेस की पहचान है। 3 डायमेंशन अगर हों तो क्या फ़र्क पड़ता है? इधर dx² dy² प्लस dz² होगा। अच्छा, लेकिन अगर ये फ्लैट स्पेस ना हो तो फिर ये इसके बराबर नहीं होगा, इससे हट के कोई चीज़ होगी। अब ये बहुत लंबी कहानी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन लिखी उसका सॉल्यूशन इस शख्स ने निकाला, श्वार्ट्ज़शील्ड। और श्वार्ट्ज़शील्ड ने जो सॉल्यूशन निकाला वो स्पेस और टाइम दोनों का, जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, स्पेस टाइम को जोड़ते हैं और ये बताते हैं कि उनके अंदर क्या फ़र्क पड़ता है जब एक भारी जिस्म कहीं रखा जाता है। तो अगर उस भारी जिस्म का मास हम m कहें तो स्पेस टाइम में जो फ़र्क आता है वो उसकी शक्ल ये है। तो ये मैं बाद में बताता हूँ कि क्या माने इसके बनते हैं।
हाँ, इधर -1। तो जो फैक्टर इधर है सो इधर है। फर्क यह है कि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, मगर दोनों में आप ये देखें कि ये 1 - 2gm/r मुश्तरक है, दोनों में आता है। और मज़े की बात यह है कि ये 2gm/r इधर भी है। क्या इत्तफाक है? दिस इज प्योर एक्सीडेंट। अच्छा, एको ये बाज़गश्त आ रही है मेरी, हाँ। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि ये भी हो सकता है, अगर ये हो कि 2gm/r 1 के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा? अच्छा, असल में इधर c² भी है, मगर चलिए रहने दीजिए वो। हाँ, तो जब 2gm 1 के बराबर हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी तब्दीली आएगी। वो तब्दीली ये कि ये 0 हो जाएगा, यानी कि जो टाइम है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, और जो स्पेस है r, जो फासला है उसके मरकज से, ये भारी जिस्म है जिसका मास m है, जिसका मरकज 0 पे रखा गया है, तो ये 1/0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी होगा। अच्छा, तो ये हुआ क्या? ये क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है इस आइंस्टाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ? वो बात हमें इधर से समझ में आती है। तो इधर 2gm/r है। असल में मैंने यूनिट्स ऐसे रखे हैं यहाँ पर कि ये 1 हो जाता है, इसके नीचे c होना चाहिए। खैर, उसको रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर असल में c होना चाहिए। अगर मैं c लिख लूँ तो आपको समझ में आ जाए। चलिए रहने दें, इसको रहने दें। गर्ज ये कि इसके 1 हो जाने से ये v भी 1 हो जाता है, और अगर आप यूनिट स्पीड ऑफ लाइट के रखें तो अब बड़ा मसला पैदा हो गया। मसला ये कि वक्त का गुज़र रुक जाता है, और इसके साथ जो है वो कोएफिशिएंट इन्फिनिट हो जाता। इस r को, जिसका फॉर्मूला ये है 2gm/r, सॉरी, ये r जो 2gm है, इसको श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस कहते हैं। ये वो फासला है जो ब्लैक होल का रेडियस कहलाता है, और अगर इससे कम फासले पर, तो ये r है, अगर अंदर से रोशनी बाहर की तरफ फेंकी जाए तो जो ग्रेविटी है वो इस कदर तेज़ होगी, इस कदर शदीद होगी कि वो रोशनी वापस आ जाएगी। अगर सतह से थोड़ा सा बाहर आप रोशनी फेंकने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके हाथ में टॉर्च है, आप ब्लैक होल की सतह से थोड़ा सा बाहर खड़े हैं और टॉर्च आप जलाते हैं, तो वो रोशनी वहाँ से निकल सकेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर हों तो फिर वो रोशनी अंदर ब्लैक होल के तो वो रोशनी फिर ब्लैक होल के अंदर लौट जाएगी और वो जाकर इधर जमा होगी।
اچھا یہ تو ساری میتھمیٹکس تھی. اس میں چلیے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آئنسٹائن ایکویشن کو سالو کر کے میتھمیٹکس حاصل کی گئی، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ تو سن 40 میں یہ سوال اٹھا کہ کیا مردہ ستارے، وہ ستارے جو اپنا ایندھن ختم کر لیتے ہیں، کیا وہ سارے بلیک ہولز بن جائیں گے؟ کیا بلیک ہول جیسی چیز کوئی ہے بھی؟ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ ستارے بنتے کیسے ہیں اور وہ مرتے کس طرح سے ہیں. ہر ستارہ پیدا ہوا جس طرح ہم پیدا ہوئے، لیکن وہ ستارے ہائیڈروجن کی گیس سے بنے. تو کائنات جب وجود میں آئی آج سے کوئی 13.7 ارب سال پہلے، اس کے کچھ لاکھ سال بعد، کچھ ملین سال بعد، کوئی 2 ملین سال بعد، ہائیڈروجن گیس پھیلی ہوئی تھی پوری کائنات میں، اور کہیں زیادہ کہیں کم اس کے دھوئیں تھے، اس کے بادل تھے. اب یہ آپ جانتے ہیں کہ جب مادہ ہوتا تو مادہ مادے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اگر یہاں ایک دھواں، ایک بادل ہے ہائیڈروجن گیس کا، تو وہ پھر سکڑنے لگتا ہے، اور جیسے جیسے وہ سکڑتا ہے تو ویسے ویسے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے. اب جب وہ کافی گرم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پھر ایک نیوکلیئر عمل شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پروٹون پروٹون سے ٹکرانے لگتے ہیں، اور جب پروٹون پروٹون سے ٹکراتا ہے تو اس سے ہیلیم بنتی ہے، اور ساتھ اس سے بہت زیادہ گرمی اور روشنی خارج ہوتی ہے. تو جب اس کی کثافت کافی ہو جاتی، اس کا سائز کافی چھوٹا ہو جاتا ہے، تو یکا یک وہ گیس کا بادل ایک سورج بن جاتا ہے، ایک ستارہ بن جاتا ہے. پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. ایک عام ستارے کی زندگی 2 سے لے کر 5-6 ارب سال تک ہوتی ہے، بلین ایئرز تک ہوتی ہے. لیکن جس طرح آپ کی گاڑی کا پیٹرول ایک دن تو ختم ہو جاتا ہے نا، فل ٹنکی کرا لیں، ویسے بہتر یہ آپ کرا لیں اس لیے کہ پیٹرول کا بھاؤ بڑھنے والا ہے پھر سے. مگر جتنا بھی آپ بھرائیں گے آخر وہ ٹنکی تو خالی ہو جائے گی، اور آسمان میں کوئی پیٹرول بھرانے کے اسٹیشن بھی نہیں ہے، پمپ بھی نہیں ہے. تو ہر ستارے کی آخر میں موت آئے گی. اب وہ موت یوں آئے گی کہ پہلے وہ ہائیڈروجن ختم ہوگی، اس سے ہیلیم بن چکی ہوگی، لیکن ہیلیم خود ایک طرح کا ایندھن ہے، اچھا ایندھن ہے، اور ہیلیم کے ستارے بھی ہیں. اچھا جب وہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس سے جو اگلا ایلیمنٹ ہے وہ بنتا ہے لیتھیم، پھر بیریلیم، بورون، کاربن وغیرہ، وہ سارے ہوتے ہوتے. مگر آخر ایک ایسا وقت آئے گا جب اس کے اندر کوئی گرمی نہیں پیدا ہو رہی ہوگی. اچھا اب گرمی کا پیدا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں. رسا کشی، ٹگ آف وار کا مقابلہ آپ نے دیکھا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہاں ہاں، مائک 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 مائک. ہاں ہاں، دونوں سائڈ سے پل کرنا ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے اور جو سائڈ اس لائن کے اکراس آ گئی وہ بہت اچھا بہت اچھا، بالکل ایسی بات ہے. تو دیکھیں 2 سائڈز ہیں، ایک سائڈ یہ ہے، ایک سائڈ یہ ہے، ہاں، اور ان کے بیچ میں ایک رسی ہے. اچھا اگر یہ زیادہ کھینچے تو رسی اس طرف چلی جائے گی، یہ زیادہ زور سے کھینچے تو رسی اس طرف سے چلی جائے گی. اب ستارے کے اندر ایسے ہوتا کہ جب گرمی ہوتی ہے تو ستارے کے اندر جو گیس ہے وہ پھیلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس پھیلاؤ کو گریوٹی
अंदर सुकेड़ने की कोशिश करती। तो एक तरफ यहाँ ग्रेविटी है, एक तरफ यहाँ गैस का दबाव है, तो इसको हम ग्रेविटी कहेंगे, इसको गैस का प्रेशर कहेंगे। प्रेशर फैलाने की कोशिश करता है और ग्रेविटी इसको सुकेड़ने की कोशिश करती है। अच्छा, जब दोनों का तवाज़ुन होता है तो ये रस्सी ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, लेकिन जब एक साइड उनमें से जब प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो फिर ग्रेविटी उस सितारे को सुकेड़ती है। और फिर अब ये सवाल 1940s में उठाया गया और बहुत बड़े बड़े साइंसदानों ने ये उठाया कि इसको आखिर क्या चीज़ रोक सकती है। जब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते, क्योंकि इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स भी होती है। लेकिन अगर ग्रेविटी उस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा तेज़ हो जाए, क्या वो मुमकिन है कि नहीं? तो उन्होंने बहुत से इसके मॉडल्स बनाए और आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि जो धकेलने वाली फोर्स है वो बिल आखिर इतनी हो नहीं सकती और उसको ग्रेविटी मात दे जाएगी, उसको हरा देगी। यानी कि जितना भी मास है उस सूरज का, जिसका अब ईंधन ख़त्म हो गया, वो सारे का सारा एक नुक्ते के अंदर जम हो जाएगा और उस एक नुक्ते की जो डेंसिटी होगी वो लामहदूद होगी, इन्फिनिट होगी। तो उस चीज़ को उस वक्त तो कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसके कोई 10-12 साल बाद जब लोगों ने इस पर मज़ीद गौर किया और कहा कि थ्योरेटिकली तो ब्लैक होल होने चाहिए, फिर ये जॉन व्हीलर ने इसको नाम दिया ब्लैक होल। उसके बाद से ये नाम चल पड़ा। तो ये 1960s की बात है। अब अगर ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जिसमें से कोई चीज़ नहीं निकल सकती, जिसमें से रोशनी भी नहीं निकल सकती, तो पहला सवाल ये उठता है कि आप इसको कैसे देख सकेंगे? अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्याह है, बिल्कुल उसमें से कोई रोशनी नहीं निकल सकती और रोशनी के अलावा और भी कोई चीज़ नहीं निकल सकती, तो फिर कैसे देखा जाए? तो इसके बेसिकली 2 तरीक़े सोचे गए। एक तो ये कि हाँ, हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसके नज़दीक कोई दूसरा सितारा है और वो सितारा गर्दिश करता हुआ दिखाई देता है, चमकदार सितारा जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी रोशनी हम तक पहुंचती है, तो फिर ज़रूर वो गर्दिश इसलिए करता है कि उसको कोई कशिश जोड़ के रखी हुई है। तो ये वैसी बात है कि अगर मैं एक पत्थर डोरी के साथ बांधूं और उसको घुमाऊं, डोरी बहुत बारीक है, आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप पत्थर को घूमते हुए देखते हैं तो आप उससे क्या नतीजा अखज़ करेंगे? पत्थर खुद ब खुद एक दायरे में तो नहीं घूम सकता ना, वो तो न्यूटन के लॉ की खिलाफ वर्जी है, कभी ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, अगर वो डोरी टूट जाए तो फिर क्या होता है? नहीं, देखो, एक पत्थर मैंने बांधा हुआ है उस डोरी के साथ, अगर डोरी टूट जाए तो फिर क्या होता? नहीं गिरेगा क्या, वो करके आगे निकल जाएगा ना, ऐसे। अच्छा, चलो, तो इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर फर्ज करो कि एक ब्लैक होल है और इसके गिर्द
अगर एक चमकदार सितारा घूम रहा है तो इस चमकदार सितारे को देखकर हम ये जान सकते हैं कि ऐसा है। एक और कि एक ब्लैक होल वहां पर मौजूद है, और ऐसे बाइनरी सिस्टम्स अब देखे गए हैं। लेकिन इससे इसके अलावा जब कैलकुलेशंस की गई कि ब्लैक होल के गिर्द अगर सितारे हों जो उसके गिर्द घूम रहे हों तो क्या उसके क्या असरात होंगे, जो बेशतर ब्लैक होल्स आज देखे गए हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये आपका एक ब्लैक होल है, बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और इसके गिर्द मलबा है, गैस है, सितारे हैं, और ये जब इसके गिर्द यूं चक्कर लगाता है तो ये ब्लैक होल जो बीच में है ये इस मादे को पकड़ता है और इसे खा जाता है। याद रहे कि ब्लैक होल बड़े भूखे होते हैं, बड़े, यानी ऐसा कोई जानवर ऐसा नहीं जो इतना ज़्यादा भूखा हो, ये तो हर चीज़ खा जाता है, सितारे पूरे के पूरे सितारे चबा जाता है। अच्छा, जब इसके अंदर कोई चीज़ गिरती है, जब ये किसी सितारे या सैयारे या मलबे को खाता है तो इससे फिर तेज धार निकलती है रोशनी की और जर्रों की, और इन धारों को हम कायनात में जगह जगह देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पर ये ब्लैक होल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब 2016 की बात है, यानी कि आज से कितने कोई 5 साल पहले की बात है कि 2 ब्लैक होल्स को टकराते हुए भी देखा गया, और उससे जो लहरें निकली जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, वो लहरें हम तक पहुंची जमीन तक। ये 2 ब्लैक होल्स थे जो हमसे इतना दूर थे कि उधर से इन लहरों को हम तक पहुंचने के लिए 1300 मिलियन साल लग गए। 1300 मिलियन ईयर्स, 1.3 बिलियन ईयर्स। इसको देखना भी एक बहुत बड़ा कमाल है। उसके बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये 2016 में देखे गए ना, उससे 100 साल पहले आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन लिखी थी जनरल रिलेटिविटी की, उस इक्वेशन से ये पेशेंगोई की गई थी, प्रिडिक्शन की गई थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी चीज कोई होती है। तो थोड़ा सा और पीछे चलो, आज से 250 साल पहले जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन लिखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो उन इक्वेशन से ये पेशेंगोई की गई कि वहां से बरकी मकनातीसी लहरें निकलेंगी। वो लहरें जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जो यहाँ से सूरज तक जा सकती हैं, सूरज से यहाँ तक आ सकती हैं, और रेडियो वेव्स जिनसे हम एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते हैं। गो के बीच में सिर्फ हवा है, या हवा का होना भी ज़रूरी नहीं है। सूरज से जो रोशनियाँ आती है वो तो खला में से गुजर कर आती है। अच्छा, ये कैसे, क्यों? ये उस मैक्सवेल इक्वेशन का कमाल था। अब आइंस्टाइन इक्वेशन का कमाल ये था कि ये वो लहरें हैं जो स्पेस टाइम, ज़मान और मकान में लहरें हैं। तो इससे जो इसका असर ये होता है कि अगर लहर यूं गुजरती है तो उसके परपेंडिकुलर कोई चीज़ लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। अच्छा, वो लहरें जो हम तक पहुंची उन 2 ब्लैक होल्स के टकराने से, वो हर चीज को जमीन पर, हर चीज को थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा
کرتی ہیں. اب بھی گریویٹیشنل ویوز ہم پہ لگتی ہیں, پڑتی ہیں, لیکن کتنا بڑا کتنا چھوٹا, بہت ہی معمولی فرق. تو ایسے کہ فرض کیجئے کہ یہاں سے وہ لہریں آتی ہیں اوپر سے نیچے, یہاں پر ہم نے 2 کلومیٹر, اور یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا وہ ایکچولی 2 کلومیٹر لمبا ایک ٹنل تھا, اور یہ ایکسپیریمنٹ لائگو کے نام سے جانا جاتا ہے, لیزر انٹرفیرومیٹر گریوٹی, اور یہ کیا او کیا آبزرویٹری, ایگزیکٹلی, تھینک یو. تو ایک اس کا ٹنل یوں ہے, دوسرا اتنا ہی لمبا ہے, اس کے پرپینڈیکولر ہے. اس 2 کلومیٹر کی لمبائی میں جتنا فرق آیا ہے نا, اتنا کم کہ وہ ایٹم کے 1000ویں حصے کے برابر تھا. لیکن پھر بھی یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ ان لہروں کا آنا اس ایپریٹس سے دیکھا گیا, لیکن یہ ایک ایپریٹس نہیں, اسی طرح کا ایک دوسرا تھا جو سے 1000 کلومیٹر دور تھا امریکہ ہی میں, اور اس سے زیادہ دور اٹلی میں بھی ایسی چیز تھی. تو تینوں نے جب بیک وقت یہ دیکھا کہ ان لہروں کی آمد کی وجہ سے یہ تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے, تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہاں یہ وہ گریویٹیشنل ویوز ہیں جن کی پیشن گوئی آئنسٹائن نے کی تھی اور جو آج ہم دیکھ رہے تھے. اور 2016 میں جب یہ ہوا نا, میں اس قدر خوش ہوا کہ رات میں سویا نہیں. کبھی کبھی زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے نا تو پھر نیند نہیں آتی, تو ایسے ہوا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایکویشنز کی لکھی ہوئی چیز جس کو کبھی کوئی, آئنسٹائن یہ سمجھتا تھا کہ گریویٹیشنل ویوز کبھی نہیں دیکھے جا سکیں گے, لیکن ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ اب ہم میں اتنی سینسٹیوٹی, ہماری اکوپمنٹ میں اتنی سینسٹیوٹی آ گئی ہے کہ ہم اتنے چھوٹے فرق کو بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو آج ایک سمجھ لیجئے کہ ایک نیا شعبہ کھل گیا ہے جس کو گریویٹیشنل ایسٹرونومی کہتے ہیں. تو اس سے ہم بہت دور دور تک دیکھ سکتے ہیں کائنات میں, وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا آنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ بیچ میں دھواں ہے, گند بلا سارا. پتہ نہ جب کائنات بنی تو بہت سارا دھواں تھا, ڈسٹ کلاؤڈز ہیں, بیچ میں نیبولاز ہیں وغیرہ, لیکن گریویٹیشنل ویوز ان سب کو پار کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں, تو ہم بہت دور تک بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو لوگ شک کرتے تھے نا کہ یہ بلیک ہولز ہیں بھی کہ نہیں, اب تو ہمیں ہر کچھ دیر بعد گریویٹیشنل ویوز ملتی ہیں ان بلیک ہولز کے ٹکراؤ سے. اب کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل منفرد نیا طریقہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو جیسا کہ کسی نے ہمیں دوبارہ ٹیلیسکوپ بنا کر دے دیا, اس آنے والی صدی میں ہم اور بہت کچھ سیکھیں گے. اب بلیک ہولز کا یہ تو ایکسپیریمنٹل پہلو تھا, لیکن بلیک ہولز اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے وہ جو فزکس کی تھیوری کرتے ہیں ہمارے لیے بہت دلچسپی کا سبب ہے, کیونکہ کئی ایسے پہلو ہیں بلیک ہولز کے جو اب تک حل نہیں ہوئے ہیں, جن کا حل ہمیں نظر نہیں آتا, اور جو بہت بنیادی نوعیت کے ہیں. اب میں ان کی طرف آتا ہوں. تو یہ سوال ہے انفارمیشن لاس کا.
and so information loss and black holes. जो हमारी रोजमर्रा की फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, तमाम जितने एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ज़मीन खुद, सैयारे, सितारे, सब कुछ, जहाँ जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का इतलाक़ किया गया तो बिल्कुल वो ठीक और सही हमें मालूम हुई है। अब उस क्वांटम मैकेनिक्स में एक बात, बहुत बुनियादी बात यह है कि इंफॉर्मेशन कभी गायब नहीं होती, ज़ाया नहीं जाती, वो किसी ना किसी सूरत में मौजूद होगी। अच्छा, ये बात तो बड़ी अजीब लगती है, मगर ये मैं आपको और कितनी अजीब है उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक किताब को आग में डालता हूँ, जला देता हूँ, उसमें से धुआं निकलता है, वो धुआं बिखर जाता है, हवा उसको इधर से उधर ले जाती है, और आप ये समझते हैं कि उस किताब के अंदर जो मालूमात थी वो हमेशा के लिए ज़ाया हो गई, कि उसमें ना सिर्फ मालूमात, लेकिन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, सफ़ा हस्ती से मिट गई। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि नहीं, अगर आप उन तमाम एटम्स को दोबारा इकट्ठे करें जैसा कि मुमकिन है, बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन इन प्रिंसिपल उन तमाम एटम्स को इकट्ठे किया जा सकता है और उसको अपनी पुरानी हालत में लाया जा सकता है। यानी कि वक्त के धारे को आप उल्टा सकते हैं, टाइम रिवर्सल इसमें। अच्छा, टाइम रिवर्सल तो हम देखते हैं कि जब मिसाल के तौर पर दो एटम या दो ज़र्रे आपस में टकराए जाते हैं, तो ये टकराने के बाद एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। अब अगर आप इसकी एक मूवी बनाएं, उस मूवी को उल्टा चलाएं, तो आपको फ़र्क नहीं मालूम होगा कि मूवी सही आगे की तरफ चलाई गई है या उल्टा चलाई गई है। हाँ, अगर इससे ये जब टकराते हैं तो इसमें से किरचियाँ निकलती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि दो ग्लास हैं, तो शीशे के ग्लास हैं, आप इनको टकराते हैं तो इसके 10 टुकड़े बन जाते हैं। फिर भी जब आप इसको चलाएंगे वापस की तरफ, तो ये मुमकिन आपको नज़र आएगा कि चलिए अगर 3 टुकड़े बने, 10 नहीं, तो आपको ऐसे लगेगा 3 को टकराने से फिर जुड़ के ये 2 में हो गया। लेकिन जब किताब को आप जलाएंगे तो ऐसे मुमकिन लगेगा ही नहीं कि इसको कभी वापस लाया जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि इन प्रिंसिपल आप ये कर सकते हैं, उसूली तौर पे ये कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप उस किताब को ब्लैक होल में फेंकें तो फिर क्या होगा? या इस चौक को उठाकर, इस चौक में भी तो बहुत सी इंफॉर्मेशन है ना, इसके अंदर एटम्स एक ख़ास तरतीब से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ख़ास क्रिस्टलाइन शक्ल में हैं, और कुछ इसमें एमॉर्फस मटेरियल है, सब कुछ। तो जब ये उठाकर आप एक ब्लैक होल के अंदर फेंकेंगे तो ब्लैक होल इसे खा तो जाएगा, तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पर एक बड़ा अहम थ्योरम है जो स्टीफन हॉकिंग ने प्रूव किया था, और इसको नो हेयर
थ्योरम कहा जाता, जिसका ये कहना है कि ब्लैक होल कैनॉट हैव एनी हेयर. What does that mean? A black hole cannot have any. Do you have hair? Yes, you have hair. And you have hair and you have hair. So what is important about hair? Hair की क्या खास बात होती है? कोई मुझे बताए, कोई बच्चा मुझे बताए, बच्चा बताए मुझे. हेयर की, बाल की क्या खास बात होती है? Just guess. चलो, guess. बाल कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, कुछ में कर्ल्स होते हैं. बाल के अंदर टेक्सचर होता है, बाल के अंदर मालूमात होती है. अब अगर मैं टींड कर लूं, अब हाँ, सारे बाल मैं शेव कर लूं, तो फिर मेरे सर पर जो इस वक्त मालूमात हैं वो कम हो जाएंगे ना. अब हॉकिंग का ये कहना है कि एक ब्लैक होल को सिर्फ 3 चीजों से पहचाना जा सकता है, सिर्फ 3 चीजों से. सो हैज ओनली उसका मास होगा, कितना बड़ा है. अच्छा देखें, उस ब्लैक होल को इससे कोई गर्ज नहीं कि अगर आपने उसको 1 किलो अंगूर खिलाया या 1 किलो सीमेंट खिलाया या 1 किलो उसमें कोई कचरे के डब्बे से उठा के फेंका, उसका मास 1 किलो बढ़ेगा. जितना उसको खिलाएंगे उतना ही वो हजम कर जाएगा, बट देयर विल बी नथिंग लेफ्ट, और कोई नहीं. अच्छा, फिर ये कि उस ब्लैक होल का अगर ये घूमने वाला ब्लैक होल है, क्योंकि कुछ ब्लैक होल्स तो घूम भी सकते हैं, कुछ नहीं घूमते हैं, तो आप ये कहेंगे कि उनका स्पिन जीरो है. जो ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं, आप कहेंगे कि उनके स्पिन्स इतने, कोई आहिस्ता कोई तेज़, तो उसके स्पिन से. और फिर एक ब्लैक होल को उसके चार्ज से पहचाना जाता. तो मिसाल के तौर पर आपने ढेर सारे प्रोटॉन अगर फेंक दिए एक ब्लैक होल में, तो वो ब्लैक होल चार्ज्ड हो जाएगा, उसका चार्ज बढ़ेगा. अलावा इसके और कोई चीज एक ब्लैक होल की पहचान में शामिल नहीं हो सकती, और ये माने बने कि अ ब्लैक होल हैज नो हेयर. अच्छा, अब मसला ये बनता है कि आपने जब कोई चीज फेंकी, मसलन ये चौक फेंका ब्लैक होल में, तो ब्लैक होल ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैंने खा लिया, हजम कर लिया. वो सारी मालूमात जो इस चौक के अंदर मौजूद है वो ज़ाया चली गई. वो किताब जिसको हम ज़मीन पर जला सकते हैं, जिसको फिर हम रीअसेंबल कर सकते हैं, वो सारे एटम जोड़ के उस किताब को उसी हालत में ला सकते हैं, वो चीज़ ब्लैक होल के लिए मुमकिन नहीं. क्योंकि एक दफ़ा वो ब्लैक होल खा जाए तो वो इवेंट होराइजन से नीचे चला जाएगा, उससे बाहर कोई चीज़ नहीं निकल सकेगी. और इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स फिर वहाँ जाकर फेल हो जाती है. और ये एक इतना बड़ा मसला है कि इस पर फिजिसिस्ट कोई 50 साल से परेशान रहे हैं. उनकी परेशानी अब वक्त के साथ कम होती जा रही है, क्योंकि इसके मुमकिना हल अब हमारे सामने आ रहे हैं. वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहलाता है. ये हल क्यों मुमकिन हुआ? अब मैं हॉकिंग की दूसरी बड़ी दरियाफ्त की तरफ आता हूँ, जो कि हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता.
वैसे हॉकिंग को नोबेल प्राइज नहीं मिला, मगर मिलने वाला था इस जब रॉजर पेनरोज को मिला तो पेनरोज और हॉकिंग दोनों ने ये बहुत बड़े काम किए थे, लेकिन हॉकिंग फौत हो गया कोई 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2018 में। हाँ, तो इसलिए उसे मिल नहीं सका। एनीवे, बहुत बड़ा काम था ये, इसका मैं मुख्तसर जिक्र करता हूँ। So this is called Hawking radiation. तो मैंने कहा कि ब्लैक होल एक स्याह जिस्म है जिसमें से कोई चीज़ नहीं निकल सकती, लेकिन हॉकिंग ने यह साबित किया कि नहीं, उसमें से शुआएं, रोशनी, ज़र्रे, ये सारे निकल सकते हैं। और वो इसलिए निकल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ने उनके लिए उन शुआओं के निकलने के लिए एक रास्ता हमें दिया हुआ है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में यह है कि खुद ब खुद खला में से बिला वजह कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन खुद ब खुद एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल पैदा होते हैं और मुसलसल होते हैं। और अगर आप इस कमरे में से सारी हवा निकाल दें, सारा मादा इसमें से निकाल लें, लेकिन फिर भी हर नुक्ते पर से ये पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स पैदा होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे है कि अगर ये एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल के बाहर, थोड़ा बाहर खला है, खाली जगह है। वैसे अंदर भी खाली है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे अगर कोई सवाल हुआ बाद में। तो ये इस जगह पर एक पार्टिकल पैदा हुआ, एक एंटी पार्टिकल पैदा हुआ, या ये एंटी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अच्छा, ये वाला तो भाग गया, मगर इसको ब्लैक होल ने पकड़ लिया। तो वो पार्टिकल्स जो इवेंट होराइजन के थोड़ा बाहर बने, उस जोड़े का एक मेंबर निकल गया, दूसरा ब्लैक होल के अंदर गिर गया। अब जो बाहर चला गया वो हॉकिंग रेडिएशन है, यानी कि हर ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन खारिज होती है। और ये सबब है कि ब्लैक होल दरअसल ब्लैक नहीं होता, वो मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं होता, उसमें से रोशनी तो निकलेगी, और किस शिद्दत से निकलेगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, हॉकिंग ने ये कैलकुलेट किया। और उसने ये कैलकुलेट किया कि ये बिल्कुल उसी तरह की रेडिएशन होगी जो एक आम स्याह जिस्म में से निकलती है, जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, और जिसका हिसाब मैक्स प्लांक ने 1900 में लगाया था। तो एग्जैक्टली जो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन है, वही डिस्ट्रीब्यूशन एक ब्लैक होल में से निकलेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि खुद ब खुद एक ब्लैक बॉडी रेडिएट करता चला जाएगा, उसकी एनर्जी खुद ब खुद खत्म होती जाएगी, उसका मास इसी हिसाब से घटता चला जाएगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि एक ब्लैक होल कितने वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। अगर हम ब्लैक होल की जिंदगी, लाइफ टाइम ऑफ ब्लैक होल
کو टी कहें तो टी बढ़ता है तो टी उसके मास के क्यूब से, उसकी 3 ताकतों से बढ़ता, जिसका मतलब ये कि जो भारी ब्लैक होल हैं वो बहुत देर तक जिएंगे, जो छोटे ब्लैक होल हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी एनर्जी खारिज करके फिर ज़ीरो मास की तरफ पहुंच जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं अंदाज़ा दूं कि अगर एक ब्लैक होल होता जो मेरे वज़न का होता, तो 100 किलोग्राम का होता, हाँ 100 केजी का होता, ठीक, तो वो कोई 10⁻⁻12 सेकंड्स में ख़त्म हो जाता, यानी कि 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में ख़त्म, 1000 बिलियंथ ऑफ 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता। अगर वो ज़मीन के मास के बराबर है, वो ब्लैक, देखिए हमारी ज़मीन ब्लैक होल बन सकती है। मुझे ये कहना चाहिए कि अगर एक ब्लैक होल, अगर हमारी ज़मीन का मास एक बहुत ही छोटे हुजम में बंद किया जाए, तो अगर इतने, यानी कि 1 इंच के बराबर सारी ज़मीन के मादे को एक इतने हुजम में बंद किया जाए, तब ज़मीन ब्लैक होल बन जाएगी। लेकिन इसकी लाइफ टाइम कायनात की उम्र से कुछ अरबों अरबों साल ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो जितना भारी एक जिस्म होगा, जितना भारी एक ब्लैक होल होगा, उसी हिसाब से उसकी उम्र ज़्यादा होगी। हाँ, दूसरी तरफ जो बहुत बहुत छोटे हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। और एक खौफ जो होता है लोगों में, तो जिनीवा में सर्न एक्सेलरेटर है जिसमें प्रोटॉन को आपस में टकराया जाता है, तो उसके नतीजे में ब्लैक होल बनते हैं, बहुत छोटे ब्लैक होल, माइक्रो ब्लैक होल्स आप कह सकते हैं। अच्छा, उधर के लोगों ने जब ये सुना ना कि इधर हमारी लैब में, हमारे नज़दीक एक लैब में ये ब्लैक होल बनेंगे, तो उन्होंने अदालत में केस कर दिया। मैं कहा कि यहाँ पर अगर ये ब्लैक होल बने तो वो आसपास से हर चीज़ को खा जाएंगे, पहले तो सर्न को ही खा जाएंगे, उसके बाद फिर वो जिनीवा को खा जाएंगे, फिर पूरे फ्रांस को, फिर पूरे स्विट्ज़रलैंड को, फिर यूरोप भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, खुदा रहा इसको रोको। तो वो जज के पास गए, तो जज ने दूसरे साइंटिस्ट को बुलाया, कहा कि इसमें कितनी हकीकत है। तो जज ने कहा, तो जज को साइंटिस्ट ने ये बताया कि देखें, जो ब्लैक होल्स बनेंगे वो 10⁻20 ग्राम्स के बराबर होंगे, तो इतने छोटे होंगे कि जब आप उसका क्यूब लेते हैं तो उसकी लाइफ टाइम इतनी भी नहीं कि वो एटम को पार कर सके। तो आप इस बात की फिक्र ना करें, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त उन्हें मिल गई। अच्छा, अब ये जो हॉकिंग रेडिएशन निकलती है, इसके अंदर वो मालूमात हो सकती है उन अज्जा की जो ब्लैक होल को पहुंचाए गए। तो जब आपने वो 1 किलो अंगूर उसमें उस ब्लैक होल में फेंका, तो ब्लैक होल को यूं याद रह सकता है कि उससे जो निकलने वाली शुआएं हैं, हॉकिंग रेडिएशन है, उस हॉकिंग रेडिएशन के पैटर्न में कहीं पर ये बात छुपी हुई है कि यहाँ 1 किलो अंगूर मुझे खिलाया गया, या 1 किलो आलू, अंगूर और आलू में जो फर्क है
وہ بلیک باڈی ریڈیشن کے پیٹرن سے معلوم کیا جا سکتا ہے ان پرنسپل. ہاں یہ امید تھی لیکن اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں ہیں. ان پیچیدگیوں میں تو میں جا ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک ایسا بڑا پرابلم ہے تھیوریٹیکل فزکس کا کہ اب اس کے ممکنہ حل سامنے آ رہے ہیں لیکن اب بھی یہ کوئی ایسا حتمی تسلی بخش حل ہمارے سامنے نہیں ہے. بس آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو ہاکنگ نے آخری پیپر لکھا, ہز ویری لاسٹ پیپر, وہ اس مسئلے سے متعلق تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ معلومات موجود ہوں گی لیکن ہم یہ ثابت اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو ایکویشنز ہیں, جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں, ان کا بیہیویئر کیوٹک ہے. اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن ہاکنگ نے اس مسئلے کو حل کرنے کی جو آخری کوشش تھی وہ لوگوں کو پوری طرح اچھی نہیں لگی. اس کے اوپر بھی آج بحث ہو رہی ہے. تو بس اتنا کہنا ہے مجھے کہ بلیک ہولز انتہائی دلچسپ ہیں, کہ اس سے جو ہم نے فزکس سیکھی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, کہ اب بلیک ہولز کوئی عجوبہ نہیں ہے, دے آر دیر اور خوب تعداد میں ہیں. اور جو سب سے بڑے بلیک ہولز ہیں اور جو دیکھے گئے ہیں وہ ہر کہکشاں کے بیچ میں ہیں. یہ سپر میسو بلیک ہولز کہلاتے ہیں. ایسے بلیک ہولز جن کا ماس ہمارے سورج سے کوئی 1 ارب سے لے کر 10 ارب گنا زیادہ ہے. تو ہماری ملکی وے میں بھی ہے, ہر کہکشاں کے بیچ میں یہ سپر میسو بلیک ہول ہے اور سب کچھ اس کے گرد گھومتا. جب ستارے اس کے اندر گر جاتے ہیں تو ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن اس سے جو روشنی نکلتی ہے, جو دھار نکلتی ہے اوپر کی طرف, دونوں طرف, اس کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بلیک ہول کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کاسمولوجی کی ہیں, ایسٹرو فزکس کی ہیں, بہت دلچسپ ہیں اور میرا خیال ہے اس پہ تحقیق رہے گی اگلے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال تک. تھینک یو. السلام علیکم سر. وہ جو آپ نے ایکویشن لکھی تھی اس کے اندر فرسٹ ٹرم آپ نے 0 کر دی تھی, سیکنڈ ٹرم آپ نے انفائنائٹ کی تھی, اس کے اندر بھی تو ہم 1 نہیں رکھ رہے, 2gm/r جو ہے. اچھا یہ دوبارہ سے لکھ لوں ادھر. یس سر. ہاں اوکے. تو یہ میں نے ایسے لکھا تھا ds² = یہ -1 ہے dr². اور یہ میں نے لکھا نہیں تھا لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ کیونکہ 3 ڈائمینشنز ہے تو وہ بھی میں نے جی سر کہیے. اس کے اندر آپ نے سپوز کیا تھا کہ 2gm/r جو ہے 1 کے ایکول سپوز کیا تھا. یعنی کہ اگر ماس اتنا بڑا ہو, ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ ماس کو 0 کر دیں تو یہ کیا بن جاتا ہے,
डी ओमेगा। ठीक, यस सर। यानी कि अगर फ्लैट स्पेस हो तो ये फ्लैट स्पेस का मैट्रिक होता, यस सर। जैसा कि स्पेशल रिलेटिविटी में है तो स्पेशल रिलेटिविटी में मैट्रिक ये होता। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि m को मैं ज़ीरो नहीं करूँगा, m को मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। जब ये m काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ये 1 माइनस लेट्स से 1/3 हो गया, फिर 2/3 हो गया। m जब ठीक इसके बराबर होगा कि ये 1 हो जाए तो फिर एक क्राइसिस आएगा। ये m की वो वैल्यू है जिस पर सिंगुलैरिटी आ जाती है, या आप कह सकते हैं कि इस ये मैट्रिक आपको कुछ नई चीज़ बता रहा है। हाँ, अब आपका सवाल क्या? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर ये 1 बन गया ना, हाँ। और 1 - 1 0 हो गया। हाँ लेकिन वही जो हमने -1 वाली टर्म ली है उसमें आप कह रहे थे ये इनफाइनाइट हो गया। हाँ, क्योंकि ये अगर ज़ीरो हो जाए ना तो ये हो जाएगा 0 टू द पावर -1 जो कि 1/0 है। ठीक, तो अगर एक 0 हो जाता दूसरा इन्फिनिट हो जाता। ठीक सर। दूसरा आपने इधर इक्वेशन लिखी थी r = जब उसका रेडियस लिखा था, हाँ, तो उसके अंदर g की वैल्यू हम ब्लैक होल के लिए कैसे फाइंड करते हैं? नहीं, जी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हम ज़मीन पर भी मेजर कर सकते हैं। तो ये चौक क्यों गिरता है? इसलिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको नीचे उसकी तौजी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जी इज़ मेजरेबल ऑन अर्थ। आप एक्सेलरेशन देखकर जी अखज़ कर सकते हैं वहाँ से। तो जी ब्लैक होल के लिए अलग नहीं है, वही सेम। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक सर। तीसरी आपने इस बात की थी जब वो कोलैप्स होने की, कि आपके पास 2 फोर्सेस होती हैं जो आप एग्जांपल दे रहे थे, एक ग्रेविटी की होती है, दूसरी प्रेशर की होती है। और आप कह रहे थे कि एक पॉइंट आता है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है न्यूट्रॉन की, उससे ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स ओवरलैप कर जाती है। तो हम बेसिकली देखते हैं न्यूट्रॉन के दरमियान जो होती हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होती हैं। जी। तो जितना एक हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो होती हैं वो एज ए ग्रेविटी को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होती हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाती जी, है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ग्रेविटी आम तौर पे बहुत कमज़ोर ताकत समझी जाती है, सबसे कमज़ोर। सबसे कमज़ोर। लेकिन यहाँ ग्रेविटी हावी हो गई तमाम दूसरी क़ुव्वतों के ऊपर। ये कैसे हो सका? इसलिए कि यहाँ जब हम कहते हैं कि जी एक छोटी चीज़ है, जब हम कहते हैं कि जी जो ग्रेविटी की पहचान है कि ये एक छोटा अदद है, वो बात ठीक है। लेकिन जब जहाँ जी आता उसके साथ मास भी आता। अब अगर मास बहुत बड़ा हो तो फिर ये बेशक छोटा है मगर ये बड़ा है, चुनाचे इन दोनों की कॉम्बिनेशन बड़ी हो सकती है, और ये इतनी बड़ी हो सकती है कि और तमाम चीज़ों से ये ज़्यादा क़ुव्वत, ज़्यादा ताकतवर फोर्स बने। लेकिन सर हम तो बात तो ये तो मुख्तसर ये कि एक ब्लैक होल जब एक सितारे में ईंधन ख़त्म हो जाएगा, मास तकरीबन उतना ही रहेगा, लेकिन क्योंकि इसका हुजूम बहुत 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 छोटा हो गया तो अब ग्रेविटी कमज़ोर ताकत नहीं रही। अब ग्रेविटी इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ बनी कि उस मादे को बिल्कुल नुक्ते में कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा सा ब्लैक होल्स को सिमेट्री उसकी बता दें, या विजुअल तरीके से हम उसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में फाइनमैन के बारे में बताया कि उन्होंने इक्वेजन से ज़्यादा विजुअल चीज़ों के तरीके से ब्लैक होल को या किसी चीज़ को समझने की कोशिश की, तो उस तरीके से हम उसको विजुअलाइज या इमेजिन कैसे कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स एंड थ्रू 3D स्ट्रक्चर और सिमेट्री और समथिंग लाइक दैट।
देखें एक बड़े बेसिक लेवल पर तो कोई इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है कि बस एक ऐसा हुजूम है, एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल सियाह है, अच्छा तो इसमें ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं चाहिए, डायग्राम नहीं चाहिए, लेकिन डायग्राम्स उस वक्त चाहिए होते हैं जब आप एक्चुअल कैलकुलेशंस करते हैं। तो रॉजर पेनरोज़ के नाम से मंसूब है पेनरोज़ डायग्राम्स, जो आपको ये बताते हैं कि स्पेस टाइम किस तरह से अलग हिस्सों में बँट जाता है एक भारी जिस्म के मौजूद होने से। जब आप उसके नज़दीक आते हैं तो बज़ाहिर इस फासले पे आर पे एक सिंगुलैरिटी आ जाती है। जैसे जैसे आप इसके नज़दीक आते हैं तो जब आप आर को छूते हैं तो एकदम ये मैट्रिक इसमें सिंगुलैरिटी हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है, ये इन्फिनिट। मगर ये एक धोखा है। असल में जो श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस है उधर कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, उधर कोई बड़ी खराबी मौजूद नहीं है, और जो ब्लैक होल का सारा मादा है वो ठीक उसके बीच में। तो देखें, हम इसको आर कहते हैं ना, लेकिन बाहर भी खाली है, अंदर भी ब्लैक होल खाली है, पूरा का पूरा खाली है, हर चीज खाली है। जो टोटल मैस है वो इस नुक्ते के ऊपर है, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है। अब जैसा कि मैंने कहा, पेनरोज़ डायग्राम से आप इस मसले को बेहतर समझ सकते हैं, मगर फाइनमैन डायग्राम जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम उसको सिर्फ एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन है इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड ही, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। लेकिन क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन भी डिस्कवर कर ली हॉकिंग ने, जिसकी वजह से जो शुआएं निकल रही हैं उसमें से वो बिल्कुल ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की तरह होती है, यूनिफॉर्म होती हैं। तो उसकी वजह से फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसके अंदर जो 1 किलो की चीज़ गई है वो क्या थी, किताब थी या फिर कुछ और था। और वो ब्लैक होल ख़त्म हो जाएगा इवेंचुअली, और फिर वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। अगर हॉकिंग रेडिएशन ना होना तो फिर तो वाज़ेह तौर पर एक तज़ाद बनता है क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी में। हॉकिंग रेडिएशन आपको ये पॉसिबिलिटी देती है कि जब कोई चीज़ उसके अंदर दाखिल हो तो जो रेडिएशन बाहर निकलती है वो उसका सिग्नेचर किसी तरह से कैरी कर सकता हो। अब मैंने कहा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है, मगर प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन तो मुकम्मल तौर पर रैंडम है। जो लोग इस मसले के ऊपर काम करते हैं वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो जो हॉकिंग रेडिएशन बाहर निकलेगी वो हॉकिंग लाइक रेडिएशन, मैं नहीं कहूँगा हॉकिंग रेडिएशन, हॉकिंग रेडिएशन के मानिंद जो रेडिएशन बाहर निकलती है उसके अंदर कुछ ऊंच नीच, कुछ सिग्नेचर्स होंगे जो ये बताएंगे कि आपने अंगूर फेंका कि आलू फेंके। लेकिन सर शुरू में तो मतलब जब इम्प्रिंट्स की बात नहीं, मतलब हॉकिंग ने तो नहीं की थी ना कि रेडिएशन में से कोई इम्प्रिंट होगा रेडिएशन पे, उसने सिर्फ ये कहा था कि रैंडम है। तो तब पैराडॉक्स शुरू हुआ था कि ना, जब उसने कहा था कि रेडिएशन रैंडम है, इवेंचुअली ब्लैक होल ख़त्म हो जाएगा, वी वुडंट बी एबल टू नो व्हाट वेंट इनटू द ब्लैक होल। तो फिर उसकी वजह से पैराडॉक्स आया। बाद में फिर लोगों ने कहा कि क्या पता जब सरफेस, जब वो गुजर रही होगी इवेंट होराइजन से चीज़, तो वो सरफेस पे इम्प्रिंट छोड़ के जाएगी और रेडिएशन निकलेगी। इम्प्रिंट छोड़ कर जाएगी। दूसरी ये कि हमें पता नहीं कि एक ब्लैक होल के आखिरी लम्हात में क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो रेडिएट करता जाता तो
بالکل آخر میں جب اس کا سائز اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ وہ پلانک سائز کا بنے گا، یعنی کہ 10⁻35 سینٹی میٹرز کے لگ بھگ ہو جائے گا، تو اس وقت ہماری فزکس فیل ہو جاتی ہے. تب ہم اسی مسئلے پر پہنچتے ہیں جو ابتدائے کائنات کے وقت ہمیں درپیش ہے، یعنی کہ جب ڈینسٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، سائزز بہت زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، تب پھر یہ سٹرنگ تھیوری یا علم غلم کی ضرورت پڑتی. سر ایک اور سوال ہے سر، وہ جو آپ نے گیما رے برسٹ کا مینشن کیا تھا نا کہ مطلب میٹر جب اندر جا رہا ہے بلیک ہول کے تو اس کے پولز میں سے ریڈیشن نکلتی ہے، تو وہ سر پوچھنا تھا کہ مطلب وہ اتنی سیدھی وہ کس طرح ہوتی ہے ریڈیشن؟ میگنیٹک فیلڈس کی وجہ سے ہوتی ہے بالکل اسٹریٹ کہ کس طرح نکلتی ہے وہ ریڈیشن؟ رینڈملی ہر جگہ کیوں نہیں نکلتی؟ نہیں، رینڈم نہیں، اس کی ایک بڑی تیز دھار ہوتی ہے جو پوری کائنات میں ایسے پھیل جاتی ہے، جیسے جیسے جاتی ہے تو وہ پھیلتی بھی جاتی ہے. ایسے کئی بلیک ہول، جہاں جہاں بڑے بلیک ہولز ہیں وہاں یہ چیز دیکھی بھی گئی ہے. تو یہ میگنیٹک فیلڈز کا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رول ہوگا، جیسا کہ پلسارز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چینل، اس ریڈیشن کو چینل کرتی ہے. اگر بلیک ہول میں جو چیز جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ سم تھنگ کین اسکیپ فرام اٹ؟ No, it is not possible to escape from it. ایک دفعہ دیکھو، I would not advise that you fall into a black hole because if you do, you're not coming back. لیکن at least we will get to know that you fell into the black hole. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ will we know that you have fallen into your black hole or has it just eaten something random? Anything that goes in never comes out. No. Is that your question? Yes. Sorry, don't fool around with black holes. And also, can black holes be destroyed? Yes, they destroy themselves. Oh, okay. وہ اس لیے کہ ان بلیک ہولز میں سے ریڈیشن نکلتی ہے، تو جب ریڈیشن نکلتی تو اس میں سے انرجی نکلتی ہے، اور ایک بلیک ہول کے پاس بس اتنی انرجی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، محدود ہوتی ہے. تو جب وہ اپنی انرجی ساری ختم کر دے گا تو اس وقت وہ بلیک ہول ختم ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ میں ان کو ابھی بتا رہا تھا، وہ جو بالکل آخری لمحہ ہے نا بلیک ہول کا، وہ بہت اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بتا نہیں سکتے. نہیں ہے میرے پاس کوئی کوشچن. وہاں پیچھے بھی آپ کا سوال تھا. اچھا، ایک بلیک ہول کے سامنے ایک اور بلیک ہول بن سکتا ہے؟ اور اگر بن سکتا ہے جب وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا فارم ہوگا وہ؟ اچھا، اگر ایک بلیک ہول سے دو بن سکتے ہیں یا دو سے ایک؟ نہیں، اگر ایک کے سامنے ایک اور بلیک ہول بن جائے تو دونوں کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں. تو دیکھو، میں مثال دیتا ہوں. دو ستارے بنے شروع میں، ایک یہ اور یہ ایک دوسرے کے گرد اس پوائنٹ کے گرد گھومتے رہے، اور اربوں سال گزر گئے، یہ بھی مر گیا، بلیک ہول بن گیا. یہ آرڈنری ستارے تھے شروع میں، اور کچھ وقت کے بعد یہ بھی مر گیا. تو دو بلیک ہولز ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں. اب جب یہ گھومتے ہیں تو ان میں سے ان کی انرجی کم ہوتی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے کافی نزدیک ہوں تو ایک دوسرے کا مادہ چرائے گا. اگر یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کا مادہ چرائے گا، اور اس طرح وہ نزدیک آتے آتے
फिर एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। जब वो टकराते हैं तो भम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बहुत बड़ा धमाका। और ये वो धमाका था जो हमने देखा ना, मैंने आपको बताया ना कि 1300 मिलियन साल पहले दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए थे। तो वो इसलिए टकराए थे कि शुरू में शायद ये चमकदार नॉर्मल सितारे थे, लेकिन फिर नज़दीक आते 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 ये टकरा गए। और क्या सवाल था? तो अब ये क्या फॉर्म करेंगे? अब ये फॉर्म क्या करेंगे जब? हाँ, तो जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं ना, तो उनमें से एक बड़ा ब्लैक होल बनता है। अगर मसलन एक ब्लैक होल का मैस सूरज से 30 गुना ज़्यादा है, दूसरे का 20 गुना ज़्यादा है, तो जब ये टकराएंगे तो शायद कोई ये समझता हो कि 50 सोलर यूनिट्स का ब्लैक होल बनेगा, लेकिन उससे थोड़ा कम होगा। ये हो सकता है कि 45 का बने। 5 सोलर मैसेज उस धमाके में खर्च हो गए। इतना बड़ा धमाका हुआ और उससे रोशनी भी ज़रूर निकली होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स इससे जो निकले वो फैलते चले गए। तो सवाल का जवाब ये कि यस, यू विल गेट वन ब्लैक होल weighing 45 solar masses, not 50. सो आई थिंक अच्छा ये पूछना चाह रहे थे कि जो ब्लैक होल दो कनेक्ट होके कोई वर्म होल बन सकता है? अच्छा, दो ब्लैक होल्स जब टकराते हैं ना, तो वो एक दूसरा ब्लैक होल बन जाएगा। अब एक ब्लैक होल, वर्म होल्स की बात हम किसी और दिन करेंगे। ओके सर, मेरा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन लॉस से रिलेटेड था। ये आपका माइक ऑन है? यस अच्छा, सर, क्वेश्चन ये है कि जो एंटेंगलमेंट है वो भी लॉस हो जाती है ब्लैक होल के अंदर, या वो सेम रहती है एंटेंगलमेंट अगर पार्टिकल्स की? तो एंटेंगलमेंट की बात यूं आती है, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया। ये अगर ब्लैक होल है, ये उसका श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस है, यहाँ पर एक पार्टिकल इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हैं, क्योंकि एक ही जगह पर पैदा हुए थे। इससे हम एंटेंगलमेंट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो एंटेंगलमेंट ज़रूर होती है कि अंदर, अब दिलचस्प बात यह है कि अंदर जो ब्लैक होल के अंदर वॉल्यूम है, इसके साथ हम यूं कम्युनिकेट कर सकते हैं बड़े इनडायरेक्ट तरीके से कि अगर यहाँ पर हम मेजरमेंट करें तो इसके अंदर जो कुछ है वो बदल जाएगा, मगर हमें उसकी खबर नहीं हो सकती। कोई थर्ड पॉइंट भी हो सकता है सरफेस के ऊपर इंटेंगलमेंट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कनेक्ट करेगा दोनों डिफरेंट साइड पे? देखें, सरफेस को आप सिर्फ यूं पहचानेंगे कि इससे बाहर इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती, इससे बाहर इंफॉर्मेशन जा सकती है, इसके अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। वैसे यहाँ पर कोई होल नहीं है, कोई मादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स एन इमेजिनरी सरफेस, इट्स नॉट अ रियल सरफेस, नॉट अ मटीरियल सरफेस। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये जो हॉकिंग की रेडिएशन है, इसकी वेवलेंथ किस रेंज में है, कोई इसकी है, और क्या ये हमें बता सकता है कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, यानी उसकी कंपोजिशन, कोई ब्लैक होल की कंपोजिशन आइडेंटिफाइबल है, या सिंपल ये न्यूक्लियस ही की जो कंपोजिशन है वही बनती है? मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ब्लैक होल की कंपोजिशन कोई नहीं होती, कोई नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि ये फला मटेरियल का बना हुआ ब्लैक होल है।
हॉकिंग ने हमें ये बताया कि सिर्फ इन 3 चीज़ों से एक ब्लैक होल की पहचान होती है कि कितना वज़न है, कितना इसकी कमियत कितनी है, इसका स्पिन कितना है, इसका चार्ज कितना है, अलावा इसके और कोई नहीं। तो ब्लैक होल को आप अलावा इनके आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इस शक्ल का ब्लैक होल, ये सारे ब्लैक होल गोल होते हैं। हाँ, जो घूमते हैं वो स्फेरिकल नहीं होंगे, वहाँ एक एक्सियल सिमेट्री होगी, लेकिन फुल स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होगी। तो ये जो रेडिएशन की वेव मैं वो कहना चाहता हूँ। अच्छा, वेवलेंथ की रेडिएशन, तो जो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आप एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा प्लॉट करें तो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल ऐसी होती है, और ये जो पीक है ये दिस इज सम कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय t, ये जो वीएन्स लॉ कहलाता है, b इज अबाउट 2.7 समथिंग। अच्छा, तो गर्ज ये कि जैसे जैसे एक ब्लैक होल जैसे जैसे किसी जिस्म को आप गर्म करते हैं वैसे वैसे उसमें से जो रोशनी का रंग निकलता है वो बदलता है, वो ज़्यादा ब्लू की तरफ, सुर्ख से लेकर नीले की तरफ जाता है और फिर उससे आगे। तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं ब्लैक होल में से? सारी फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, लेकिन जो पीक है वो इससे तय होता है। तो ये टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक होल है, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक होल उसके मास पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके मास पर डिपेंड करता है। ये यानी जो टेम्परेचर है ये मेजरेबल या एस्टिमेटेबल है, यानी एस्टिमेट कर सकते हैं आप इसका? उसका जवाब है कि इन प्रिंसिपल आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आज तक हॉकिंग रेडिएशन कहीं देखी नहीं गई है, ये महज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नो ब्लैक होल रेडिएट्स हैज बीन सीन टू रेडिएट ब्लैक हॉकिंग रेडिएशन, क्योंकि वो इतनी धीमी है कि उसको देखना नामुमकिन है। और देखें, जो ब्लैक होल जितना बड़ा होगा उससे उसी हिसाब से हॉकिंग रेडिएशन कम निकलेगी, उसका टेम्परेचर नीचे होगा। जो छोटे ब्लैक होल हैं वो इतने गर्म हैं कि वो फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मास है, स्पिन है और चार्ज है, इसको मेजर करने के लिए क्या हमें सिंपल ग्रेविटेशनल जो उसका गिर्द कोई मास घूम रहा है तो वी कैन एस्टिमेट द मास ऑफ द ब्लैक होल, और कोई क्या? तो ब्लैक होल जिस तरह से बना, तो जो अच्छा, ब्लैक होल का मास आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस ब्लैक होल के एक ब्लैक होल का मास कितना होना चाहिए। देयर आर ब्लैक होल्स ऑफ ऑल डिफरेंट साइजेस, ऑल डिफरेंट मैसेज, ऑल डिफरेंट स्पिन्स, ऑल डिफरेंट चार्जेस। और जो चार्ज है वो कैसे मेजर करते हैं? वो भी जो इनपुट पे डिपेंड करता है? जो नहीं, मेजर कैसे करने, लाइक यू मेजर एनी अदर चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा। Sir, these are 3 questions from Facebook. Ahmad Khan asks, what is an accretion disk of a black hole? व्हाट इज What is an accretion disk of black hole? एक्रीशन डिस्क? तो हाँ, तो जो बड़े ब्लैक होल्स हैं उनके गिर्द जो सितारे घूमते हैं उसको एक्रीशन, जो सितारे हैं, जो मलबा है, जो गैस है, उसको एक्रीशन डिस्क कहते हैं, क्योंकि मैटर हैज़ एक्रीटेड, जमा हुआ है उस डिस्क पर। Ahmad Khan asks, second question, what is difference between a black hole and wormhole? एंड Wormhole. वर्म होल। अच्छा, तो वर्म होल एक सॉल्यूशन है आइंस्टाइन की इक्वेशन का,
आइंस्टाइन की इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो स्पेस टाइम के एक रीजन और दूसरे रीजन को कनेक्ट करते हैं थ्रू अ ब्लैक होल। तो यूँ समझ इसके लिए एक अलग डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन मुख्तसर ये कि वर्म होल में आप दो अलग अलग जुदा रीजन्स स्पेस टाइम के कनेक्ट कर सकते हैं। एक रास्ता बहुत लंबा है और दूसरा वर्म होल के ज़रिए से बहुत छोटा है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेब है, तो सेब के एक सेब है और उसमें एक कीड़ा भी है। तो वो कीड़ा इधर से उधर पहुंच सकता है सीधे एक टनल बनाकर, या फिर उसके गिर्द घूमकर जा सकता है। Muhammad Naeem asks, we know galaxies are made around black holes and these galaxies are expanding in space. Are these black holes also moving with galaxies in expansion? आंसर इज़ नो। जो स्पेस टाइम फैलता चला जा रहा है, ये किसी फोर्स के नतीजे में नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर सूरज और ज़मीन है, ये इकट्ठे रह रहे हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कायनात का फैलाव और मसलन एटम या निज़ाम शमसी या एक पूरी कहकशां, ये अलग अलग वजूहात से आगे इवॉल्व करते हैं। चलिए ये आखिरी सवाल करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन हो रही है अभी, सो क्या ये रीज़न हो सकती है कि कुछ ब्लैक होल मर्ज कर रहे हैं या एक्सप्लोड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सपेंशन जो है, एक्सेलरेशन यूनिवर्स का बढ़ रहा है? क्या इस तरह की कोई एस्ट्रोफिज़िक्स में कोई ऑब्जर्वेशन हुई है या स्टडी हुई है? देखें, अगर ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो उसका हमें यूं पता चल जाता है कि उसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, जो देखी भी गई है और हम ज़्यादा देखेंगे। लेकिन कायनात का फैलाव इसके सबब नहीं हो रहा है। कायनात फैल रही है क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशंस हमें बताती हैं कि स्पेस टाइम जब जिसकी इब्तदा हुई उसको तो फैलना है ही आगे। हाँ, उस फैलाव में कमी आएगी अगर कायनात का मास एक हद से ज़्यादा हो गया तो ग्रेविटी उस पर हावी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो डार्क एनर्जी है जिसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं, तो वो डार्क एनर्जी कायनात के फैलाव को और ज़्यादा तेज़ करती चली जा रही है। लेकिन इसका ब्लैक होल से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। Okay. तो क्या जो बिग बैंग है वो किसी ब्लैक होल की एक्सप्लोजन हो सकता है? इसको हम ऐसे देख सकते हैं? नहीं, जो शुरू के कंडीशंस थे और जो एक ब्लैक होल के बनने के कंडीशंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो कायनात एक ब्लैक होल से नहीं शुरू हुई। ओके सर, ब्लैक होल्स के कुछ नंबर्स है कि हाउ मेनी ब्लैक होल्स आर देयर, जस्ट लाइक एटम्स को हम एस्टिमेट करते हैं या स्टार्स को, या इनके कुछ नाम हैं कि जैसे स्पेसिफिक नेम्स इनको देते हैं? हाँ, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ब्लैक होल्स हैं? ज़रूर लोगों ने किया होगा, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं। अब क्योंकि हम उनके टकराने की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, खासी है। इस पिछले 5 साल में 10-12 इस तरह के तसादुम देखे गए, तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये खासी तादाद में मौजूद हैं। मगर मुझे पता नहीं कि अब जो नया तखमीना है वो क्या है। थैंक यू सर। ओके, चल, राइट, थैंक यू।